point where the problem occurs is the point only 0, because if you go from left direction, so function value will be x by 2 kind of, and if you approach 0 from positive direction, that is 0 plus h kind of, तो उसमें उसकी वैल्यू हो रही है 2x plus 3. Say yes or no? So in general, Yes. whenever some function is given in breaking domain, that is for this value function will take this value, and for some value function will take this value. So you have to check only at the intersection point of the domain where the domain break. Now come to the question. Fx is equals to mod of x where x lies between -1 to 2. First reason you can give, this is not differentiable at 0 and hence LMBT fails. Okay, everyone? Say yes or no? Yes, sir. Now, Yes, sir. Yes, sir. if possible, suppose there exists some C belongs to this. Okay? अब मेरे को एक बात बताओ, आपके पास क्या गारंटी है कि C जो है वो -1 से 0 के बीच में ही लाइज करे या 0 से लेकर 2 के बीच में ही लाइज करे? बिकॉज ये हमारा जो फंक्शन है ना mod x की प्रॉपर्टी वो होती है whenever some x greater than 0, so mod x will be usually x, but x as less than 0, so mod x will be minus of x. You cannot decide about C because C lies between open interval -1 to 2. You cannot say because you require f dash C. So you have to consider two cases, either C lies in this, तो उस केस में उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वो, और अगर C यहाँ लाइज करता है तो उस केस में उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा. You have to work out with two cases. So as per my opinion, डोंट गेट इनटू दिस प्रॉब्लम. डायरेक्टली आप उसको सिर्फ एनालिसिस कर लो कि फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है. यू आर गेटिंग अ पॉइंट 0 वेयर फंक्शन फेल्स टू बी डिफरेंशिएबल. डायरेक्टली स्टेट इट, function f is not differentiable at 0, therefore the second condition of LMBT is fails, and hence what, hence function fails to be satisfy LMBT. Okay. Yes. Okay. सर आगे चलें आप. सॉरी, सेकंड वाला तो सर सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डाउट है. सेकंड वाला तो सिंपली कंटिन्यूअस ही नहीं है, 0 पे डिफाइन ही नहीं होगा ना. आप देखो ना, और सॉरी 0 है ही नहीं है ना उसमें. सॉरी वेट अ मिनट. 1 माइनस 3x और अपना डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल 1 to 5. देखो क्लोज इंटरवल, इसको एक आप काम कर सकते हो, ये आपका fx है. फॉर सिंप्लिसिटी यू कैन राइट इट एज लाइक दिस, सॉरी x, you can write like this, and you know rational functions are always continuous in its domain. ये function जो है वो 1 to 5 में continuous है. This function is also continuous in 1 to 5, so we know that px upon qx is continuous in its domain provided px is continuous in its domain and qx is also continuous in its domain. rational function की property आपको पता होगी 12th क्लास में. Say yes or no? Okay, so यहाँ से continuity तो मिल गई इसकी. Now what about its differentiability? Try to find out first of all differentiable. So क्या होगा, 0 minus 3 as it is constant और ये इसका -1 by x square, so this will be minus plus 3 upon x square. और इसको तो 1 से लेके 5 में कहीं प्रॉब्लम है ही नहीं. This is a well behavior function. Say yes or no? Yes. So you can Yes, very well find out a constant c such that Yes, fb रूट f पाई of- आ रहा है. yes sir. तो रूट फिर 5 क्या आंसर प्रॉब्लम, है. तो रूट 5 आंसर आ Yes, रहा है. sir. मेरा तो तो 2 point समथिंग हो गया ना, विच इज लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल 1 to 5 हो तो गया. क्या प्रॉब्लम है, जिसको डाउट था सर, इसको ये सर नहीं, थर्ड इसके वाले में डाउट था. एक बात वाला. हाँ, थर्ड वाला. आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने यूं कहो ना यार. ऐसा नहीं सर, थर्ड ही बोला तो मैं पहले. सर ये है ना स्टूडेंट्स का सर ना, क्या इसमें बोलते हैं. टू पे नॉन मुझे डिफरेंशियल. क्वेश्चन बताओ बिकॉज 2 स्लाइड एक साथ से पॉसिबल नहीं. सर क्या वो एफएक्स इज, सेकंड वाला क्वेश्चन में -1 to 5 देख लिया था इंटरवल, इसलिए गलत हो गया. अरे यार ऐसे मत करो. आपने देखो फर्स्ट पूछ लिया, सेकंड पूछ लिया, थर्ड पूछ लिया, खत्म हो गया. नहीं होमवर्क सर, फिर करा रहा हुआ क्या है. यार. सर करे तीनों है. सर थर्ड So you खाली are पूछ रहा cross हूँ कि checking नॉन me डिफरेंशियल है whether टू I, है ना.
नहीं सर, क्रॉस चेक नहीं कर रहे, वो डाउट था उस। ओके देखो क्विकली मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो फंक्शंस होते हैं ना इस टाइप के, ये सिंपल सिंपल फंक्शन, उसमें कंटिन्यूटी मतलब क्या होती है? देखो आपने ये कंसेप्ट कहीं पे पढ़ा है कि अगर फंक्शन सिंपल होता है ना, कोई भी सिंपल फंक्शन वन एक्सप्रेशन टाइप का, तो उसमें अगर हमें ऐसा कंसेप्ट अप्लाई करना हो लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स, तो हम सिंपली उसको वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, ये तो पढ़ा होगा ना आपने, अगर सिंपल एक्सप्रेशन है तो डायरेक्ट Yes, sir. लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, कुछ खास दे नहीं रखा है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डायरेक्टली देखो ये जो डोमेन है ना हमारा, कौन सा डोमेन, 1 लेस देन इक्वल्स टू x स्ट्रिक्टली लेस देन 2 और समथिंग 2 स्ट्रिक्टली लेस देन x, और जो भी वैल्यू दे रखी है तो उन पे तो ये पॉलिनोमियल है, तो कंटीन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। से यस और नो, से यस और नो। एक और फंक्शन Yes. सर ऊपर Yes, इक्वल sir. टू। Yes, sir. Yes, sir. सो शुभम, मैंने डोमेन ब्रेक करके और बता रहा हूँ, मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट 2 है उसको निकाल दिया फॉर द टाइम बीइंग। आई हैव रिमूव्ड the point x is equals to 2 for the time being, and then see what you see, this is a polynomial expression, this is also a polynomial expression, and for this is continuous as well as differentiable, not at a problem. Now this is a simple expression, see this. सर हाँ बोलो। सर बट अब मैं ये आपका 2 आपके क्वेश्चन की तरफ ही जा रहा हूँ मैं। I am going towards your question. Now put value 2, therefore you will get 2 minus 2, that is 0, and similarly you put 2, so 2 minus 2, that is 0, तो left hand limit और आपका वीडियो और ऑडियो पॉज होता है। Sir, आवाज नहीं आ रही. for at 0. Now what about its differentiability? सर आवाज नहीं आ रही है। नॉन डिफरेंशिएबल है। सर सर आप अब आई, बीच में pause अब पॉज हो किए गया थे। था। आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, अभी आ रही है आवाज अब सबको? यस सर आ रही है। Yes, sir. वो खाली सर अभी आ रही है। ओके, ये है ना, ये ऐसे माइक मुझे ऐसे रखना पड़ता है, वो एयर क्या बोलते, पायलट वाली फीलिंग आ रही है मुझे इसमें। ओके चलो, सो ये डिफरेंशिएबल नहीं है ऐसा शुभम बोल रहा है। ओके शुभम, तो क्या करना है, डिफरेंशिएबल नहीं है तो ऐसा जरूरी तो है नहीं, इज एप्लीकेबल पूछा है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एलएमवीटी फेल्स टू। देखो इसका मैं एक बात बता दूं, अगर डोमेन ब्रेक करके देखो ना, 1 लेस देन इक्वल्स टू x स्ट्रिक्टली लेस देन 2, तो वहां पे डिफरेंशिएबल होगा बिकॉज दिस इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। सिमिलरली व्हेनेवर 2 स्ट्रिक्टली लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 3 होगा, वहां x माइनस 2 दैट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, देयरफॉर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। नाउ check first about continuity at x is equals to 2. This is given. We are finding actually कि ये 2 पे continuous तो है. Now differentiability check करना है. You can find out its left hand derivative and its right hand derivative. Both are equal. Then this is differentiable. So I am not going to solve this question. आप left hand derivative find करो, right hand derivative find करो. There is a possibility. और इसका आप ग्राफ प्लॉट हाँ करोगे सर ना, ग्राफ बनाया तो था। हाँ तो पिक पॉइंट आ रहा होगा कहीं ना कहीं हाँ। उसका x is equals to 2 पे। यस सर। हाँ तो फिर हो गया ना, क्या प्रॉब्लम है। चलो अब आगे चलते हैं, नहीं बहुत सर, वो ज्यादा पूछ डिस्कस। रहा था कि उसको प्रेजेंट कैसे करना, मतलब एग्जाम में, मतलब एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, सी व्हाट यू हैव टू डू, द गिवन फंक्शन fx इज दिस। नाउ फॉर द इंटरवल 1 less than equals to x strictly less than 2, the function value is 2 minus x, which is polynomial and hence differentiable as well as continuous, that is continuous as well as differentiable. And for the interval 2 strictly less than x less than equals to 3, this is also a, and we are requiring I think open interval for the differentiability. So you can write down for the interval 2 strictly less than x less than 3, this is differentiable and hence continuous. But for the point x is equals to 2, कंटिन्यूटी चेक कर लो पहले आप, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लो, राइट हैंड लिमिट फाइंड करो और फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लो, तीनों इक्वल मिल जाएगा। Therefore the Yes, sir. function fx is continuous at x is equals to 2. Further we will check the differentiability of function f at x is equals to 2. So you have to find out first of all its left hand derivative, say 1, find out its right hand derivative, say 2. If 1 and 2 are equal, तो ये function क्या हो जाएगा आपका, differentiable भी हो जाएगा। If function is differentiable, so LMVT can be applied, और अगर apply हो रही है then you can
फाइंड आउट अ कांस्टेंट c, बट यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है, सर सी की वैल्यू हाँ अप्लाई ही नहीं हो रही है ना। सी हाँ देखो शुभम, वो तो एक इलस्ट्रेशन था, यू कैन गिव कोई भी क्वेश्चन है उसको अगर आप कॉन्ट्रा पॉजिटिव आंसर देना चाहते हो ना कि यहाँ फेल्स हो रही है, देन यू हैव टू जस्ट पिक अ पॉइंट वेयर सम कंडीशन डजंट होल्ड, डोंट गेट इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू नहीं मिलेगी तो ही हमसे फाइंड नहीं हो रही अल्टीमेटली। आप जनरली आप समझो सी की वैल्यू नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ एलएमवीटी फेल्स, सो सी थोड़ा क्या है ना कॉन्ट्रा पॉजिटिवली फाइंड करना थोड़ा टफ पड़ेगा। लाइक उस केस में क्या फंक्शन एकदम सिंपल फंक्शन था, कोई खास फंक्शन था नहीं, वो मॉड एक्स जैसा फंक्शन है, ये फिर ये 2x में अपॉन ये 2x और x में, तो थोड़ा टिपिकल पड़ेगा। इसमें क्या इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि सी हमेशा 1 से 2 के बीच में ही आएगा या फिर 2 से 3 के बीच में आएगा, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट। ओके, सो आज का लेक्चर अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो ये आपका रिवीजन ही चल रहा था, वो कहाँ गए, रिवीजन करवाओगे ऐसा पूछने वाले कौन था लास्ट टाइम? ओके, सो देखो एलएमवीटी का यूज बेसिकली कोई भी फंक्शन दे रखा है तो एलएमवीटी का यूज क्या होता है कि यू कैन फाइंड आउट वन वैल्यू ऑफ एक्स whose tangent is just parallel to the chord joining the its extremities. Okay, this is the one then you solve several kind of example कि LMVT apply हो रही है ना हो रही, but what is the abstract use of LMVT? What is the abstract way of use LMVT? So using LMVT, what we can do, we can prove or we can show we can prove or we can show some inequalities which is in general I think मतलब एकदम easily से solve करना that is not possible, and we are going toward that topic. We will cover some basic inequalities using Lagrange's mean value theorem. So get into the first question. Okay, what is the scenario of this question? मैं आपको पहले ब्रीफ आउटलाइन दे देता हूँ हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। क्वेश्चन तो सारे एक जैसे ही आएंगे, कोई खास प्रॉब्लम है नहीं, करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो ऐसा हो तो। व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गिव, अब हमको एक सपोज प्रूव दैट द फॉलोइंग इनइक्वालिटी, ये अननोन जो है वो एक इनइक्वालिटी है, ठीक है, प्रूव दैट दिस इनइक्वालिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर बेसिक टास्क इज फाइंड आउट, और हमको एलएमवीटी यूज करना है, ठीक है। एलएमवीटी में क्या होता है, एक तो फंक्शन होता है एफ और एक क्या होता है, एक इंटरवल होता है सम ए टू पी। अगर ये हमें मिल जाए तो हम क्या करेंगे, एलएमवीटी चेक कर लेंगे। इफ वी after a certain stage, if we are able to find out some function f and its domain that is closed interval ab, so we will try to check whether LMVT applies or not. If LMVT applies, then what will happen, fb minus fa upon b minus a is equals to f dash c. यहाँ तक सबको क्लियर है क्या करना है वो क्वेश्चन में, वो मैं बता रहा हूँ, एक आउटलाइन बता रहा हूँ जनरल कि वही हम फॉलो करेंगे। You have to find out a function f and its domain close interval ab, so you can apply LMVT, so you will get fb minus fa upon b minus a is equals to f dash c. Now you have f dash c with you, say it's to be number 1. What is the speciality of c, where c lies between, where c lies, A and B. Between A and B, open interval of A and B. so what we can write exactly, a strictly less than b less than c, ये हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. और ये जो होगा ना f dash c, that is also some numerical value for kind of 2c plus 1, ऐसा कुछ होगा एक्सप्रेशन c के पेयर में, say yes or no, corresponding to function ना, ये तो एक एग्जांपल है, you have some function, Yes, sir. उसका आप डिफरेंशिएशन करोगे, Yes, उसमें sir. c असाइन करोगे, सम ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा। so our basic objective is that from this condition we have to find out this estimation। तो वो कैसे होगा, देखो अब हम यहाँ इसको, ये जो एक्सप्रेशन है ना हमको इसमें कन्वर्ट करना है, कैसे, तो देखो c के साथ 2 है तो हम क्या करेंगे, 2a कर देंगे, 2c कर देंगे, 2b कर देंगे। नाउ वी वांट वन एडिशन, तो 2a plus 1 less than 2c plus 1 less than 2b plus 1. So basically our task is to estimate the value of f dash c in the interval ab. क्लियर है सबको आइडिया?
सो क्वेश्चन जब करेंगे ना तो फटाफट सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बाकी कोई टीचर आपको ऐसे नहीं बताएगा कि व्हाट इज द आउटलाइन फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन करवाएंगे डायरेक्टली वो लोग सिर्फ पेज घुमा घुमा के। सो व्हाट इज द बेसिक आइडिया? इफ वी वांट टू प्रूव सम inequality using LMVT, first of all we will find out or we will specify what is the function, what is its corresponding domain. its domain अगर हमारा मिल जाता है हम उस पे LMVT अप्लाई करेंगे। we will find out some constant C which is lies between open interval A and B, and then using the value of C lies between A and B we will find out the estimation of F dash C, और जो estimation होगा वो हमारी inequality होगी। you can see from the example. क्लियर सबको? से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. I F think dash A और B में ना है तो either not differentiable or not continuous. देखो ऐसा है शुभम, आप क्या बोल रहे हो? वापस करो आपका क्वेश्चन। सर अगर F dash C A और B के बीच में ना आए तो ए फिर और बी either के not बीच में कौन कह रहा है? differentiable, ए के बीच में कौन कह रहा है? ए और बी के, मैं तो क्या कह रहा हूँ, मतलब सपोज आपका वो मल्टीप्लाई करके सब। आपको एक इनइक्वालिटी ऐसी डिराइव करनी है, लिसन, कि जो ये कंडीशन फुलफिल करे और सम कैलकुलेशन दैट इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, व्हाटएवर, यू हैव टू फाइंड आउट सम कांस्टेंट के। सपोज मैं टाइम बीइंग इसको आप जो जो ऑपरेशन करोगे उसको लास्ट में के कह देता हूँ, और यहाँ पे तो एफ डैश सी का एक्सप्रेशन लाना है कुछ भी करके, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सप्रेशन बनेगा उसको के के बाद एम, तो ये लो एम। ये तो आप ला ही सकते हो ना, ये कहाँ ए और है और ये बी है, दिस इज नॉट नेसेसरीली ए और बी, वी वांट जस्ट एन एक्सप्रेशन यूजिंग सी। क्लियर है अब आपको? यस सर। ओके, सो वी विल गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। केबीसी चालू हो गया। थोड़ा क्या है ना, मुझे तो ऐसा गाइड किया गया कि बच्चों को एंटरटेन मत करो, बट मैं क्या है ना एज ए स्टूडेंट आपको पढ़ा रहा हूँ कि लाइक थोड़ा इंजॉयमेंट साथ में हो। एकदम सीरियस सिर्फ क्वेश्चन आंसर मुझे नहीं पसंद एटलीस्ट वो क्लास, क्योंकि मेरा भी एमएससी अभी खत्म हुआ है तो आई कैन अंडरस्टैंड, और आप तो 12th क्लास से अभी यहाँ पे आए हो ना। सो बेसिकली क्या होता है ना कि अचानक से कॉलेज में आना, फिर ऐसी चीज़ें पढ़ना, तो उसके साथ थोड़ा इंजॉयमेंट जरूरी है। एंड यू कैन इंजॉय, वेरी वेल इंजॉय, बट जब सिंसियरिटी की बात आती है तो आप सिंसियरिटी रहो। लाइक उस दिन मुझे जो लड़की ने रिप्लाई किया ना कि लिखेंगे तो सीखेंगे कब, दैट इज़ नॉट फेयर। अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लेक्चर के टाइम पे थोड़ी बातचीत कर सकते हो, थोड़ा इंटरटेन कर सकते हो, बाकी सिलेबस तो होगा, साथ में सिलेबस चलेगा। ओके यस सर। ओके सर। सी दिस क्वेश्चन, we have to prove that Okay. we have to prove this inequality, everyone, we have to prove this inequality। सर क्वेश्चन फिर से दिखाओ ना। मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, आप थोड़ा तो क्वेश्चन वहां से देख लोगे तो इस क्वेश्चन में करने लायक कुछ है ही नहीं, बट मेरा मोटिव ऐसा है कि मैं आपको क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन के तरीके से दूं, so you can immediately find out। See everyone, please focus here। so you want to prove this inequality, okay, and जो in between का term है ना, every time you have to compare with FB minus FA। you have to see this in between expression in the form FB minus FA। now everyone find out what is the function and what is its domain। everyone find out the value of function f। what is f? what is the interval, close interval ab? चलो सर डोमेन क्लोज इंटरवल 99 to 100। शुभम आप बोल रहे हो? नहीं, कौन है ये? ओके आपका आंसर मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, close interval 99 to 100। any other opinion? there are 83 students in the lecture। तो ये रूट 100 माइनस रूट 99 लिखा है और वो 1/18 Yes. लिखा है। this is 1/18, this Okay, is 1/18, this is 1/20, root 100 minus root 99। any another opinion?
फॉर द डोमेन यस सर, ये वाला सही है, फंक्शन रूट एक्स ले सकते हैं। ओके, 2 opinions are this. Any another opinion? 83 स्टूडेंट है, सिर्फ 2 लोग भी पढ़ रहे हैं क्या? सर सर 99 to ओके, सो वी कैन, और मान लेते हैं, चलो डोमेन 99 to 100. So how you guess? This is your f of b minus f of a. Therefore, this is your a. Therefore, this is your b. And simply we have write down this a and this b. Clear सबको यहाँ तक? Yes, Now sir. identify what is function. What is the function where x lies between root Root x. 99 to root x. fx is equals to root x. सब Under root agree है इसके साथ? Everyone is agree with this? Everyone sir. is agree? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. our first task is complete. We have found out what is our f. F is nothing but square root of x, and its domain, that is close interval ab, is this. अब आपको इसमें कोई फटाफट से कुछ लिखने की जरूरत नहीं ज़्यादा. ये क्वेश्चन क्या है, इनइक्वालिटी पे बेस है, तो आपको एलएमवीटी के बारे में डिटेलिंग देने की जरूरत नहीं. डायरेक्टली यू कैन वेरी वेल राइट आउट बाय, पहले आप चेक कर लो. हाँ, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली लिखना मतलब आपको ही सिनेरियो क्लियर ना हो. यू शुड चेक. दिस इज स्क्वायर रूट फंक्शन. डोमेन जो है दैट इज नॉन नेगेटिव, इनफैक्ट पॉजिटिव. सो पॉजिटिव के लिए तो स्क्वायर रूट कंटिन्यूस फंक्शन, दैट इज नॉट एन इशू. डिफरेंशिएबल भी होगा, कंटिन्यूस भी होगा. डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं? ये डिफरेंशिएबल होगा. होगा ना, Differentiable होगा. है। So the differential sir for positive x. How you will differentiate it? How you 1 will by 2 root differentiate? x. Half X One is half to one by this. root x. इसका One difference, by 1 by 2 raised to x raised to minus 1 by 2. minus तो half. देखो ये डिफरेंशिएबल है ये डोमेन में, तो इसलिए अल्टीमेटली क्या आप लिख सकते हो, बाय यूजिंग Lagrange's mean value theorem. What will happen? There exists some c belongs to 99 to 100 such that क्या हो जाएगा? It lies between 100. अच्छा, One. हाँ. ओके, यहाँ तक. yes sir. अब मैंने आपको कहा था कि जो आपका Yes, sir. एफ बी माइनस एफ है जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो आपका इनइक्वालिटी का बीच का एक्सप्रेशन होता है. देखो यहाँ आ गया बीच का एक्सप्रेशन आपके पास. दिस इज Yes, योर sir. रूट 100, दिस इज योर रूट 99. यहाँ तक सबको क्लियर है? एक भी स्टेप बीच में से गैप मत होने देना. यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है Yes, sir. सबको? ओके. Yes. अब हमारा नेक्स्ट Yes, टास्क sir. क्या है? हमारा नेक्स्ट टास्क है 99 लेस देन सी लेस देन 100 से हमें एफ डैश सी की ओर अप्रोच करना है. ठीक है, व्हाट विल बी एफ डैश सी? ये रहा. दिस इज योर एफ डैश सी, दैट इज 1 अपॉन 2 रूट सी. सो अप्लाई दिस. ठीक है. अब मैं एक आपको देखो, अगर आप स्क्वायर रूट फंक्शन लेते हो ना, तो पहले आपको सी पे क्या चाहिए? स्क्वायर रूट चाहिए. सो 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करना, जल्दी मत करने जाना कोई भी. 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करना इसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट सी इन द स्क्वायर रूट फंक्शन. स्क्वायर रूट फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, सो व्हाट विल हैपन? इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. sir. नाउ Yes, sir. अब देखो इसको अभी टाइम बीइंग के लिए भूल जाओ. दिस इज योर स्क्वायर रूट. अब ये क्या एक परफेक्ट नंबर है? व्हाट इज इट्स स्क्वायर रूट? 10. ओके, बट इसके लिए मुझे एक अच्छा एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है. सो व्हाट आई कैन डू? आई कैन टेक सम परफेक्ट स्क्वायर नंबर से 81. 81 ही सबसे छोटा नंबर है और 99 से क्लोज में जो परफेक्ट स्क्वायर है. अब Yes, ये sir. जो स्क्वायर रूट है वो भी स्क्वायर रूट 81 से बड़ा होगा. सो 81 का स्क्वायर रूट मुझे पता है. 9. सो एक अच्छा एक्सप्रेशन मिल गया आपको. यू विल गेट 9 लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ सी लेस देन 10. So first task is complete. Now you want multiplication of 2, that will be 18, 2 root c 20. ये भी खत्म. Now you Yes. want reciprocal. Reciprocal will change the inequality. Yes sir. Reverse the inequality. What is the value of this? This is nothing but नीचे तो 1 है, so directly you can replace root 100 FB minus FA. root 19. हो गई आपकी inequality proof? Say yes or no? Yes, You sir. are getting Yes, sir. the expression what you Yes, want. Yes, sir.
अभी इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं आता है, ठीक है। नाउ यू कैन गो टू द पीडीएफ एंड सी, कंसीडर द सर इजी फंक्शन। है सर, समझ गया। ओके, इजी ना। जब हम बीएससी में थे ना फर्स्ट टाइम, तो क्लास में टीचर आते और ये करवाते इनइक्वालिटी, पता नहीं कहाँ से क्या हो जाता। ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम द एग्जैक्ट आइडिया कम्स इन आवर माइंड कि हाँ ये हो रहा है एग्जैक्टली। ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन fx इज इक्वल टू रूट एक्स वेयर x लाइज बिटवीन 99 to 100। सो आपने रफली एक माइंड में ही चेक कर लिया, हाँ यहाँ पे LMVT अप्लाई हो जाएगी। सो डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन बाय LMVT एंड ऑल्सो गिवन अप्लाई LMVT, देयरफॉर अप्लाई कर सकते हो। सो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन बाय LMVT स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 99 इज इक्वल टू 1/2 रूट सी। यहाँ पे डिवाइड में 1 है, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा है, मेरे को भी दिख नहीं रहा है, बट वो 1 है उसके नीचे, दैट इज 100 माइनस 99। ओके, यहाँ तक सबको से यस और नो? Yes, sir. जो मैंने Yes, आपको sir. Yes, sir. जो आपको मैंने वहां पे बताया, जो मैंने आपको पेंट में बताया, वो तो एक बेसिक आइडिया था, बट हाउ टू राइट इन एग्जाम, दिस इज द फॉर्मेशन। Now c greater than 99, therefore c is greater than 81, therefore we can very well write down 81 less than 99 less than c less than 100, therefore 81 is less than c less than 100, taking square root multiply by 2 and reciprocal it। so exactly हमारा टास्क क्या है, आप अभी से एक बार फिर से फिक्स कर लो। we will always have this condition, say yes or no, and we have to Yes, go sir. from this condition to दिस कंडीशन। एफ डैश सी के लिए F जो dash. भी एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा उसके लिए हमें एक रेंज फाइंड करनी, दैट इज द अवर मोटिव। वी हैव टू डू ओनली दिस वर्क, नथिंग एल्स। सारे क्वेश्चन में फंक्शन स्पेसिफाई करो, उसका डोमेन स्पेसिफाई करो, LMVT अप्लाई करो, तो वहां से आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और हम जो फंक्शन सिलेक्ट करेंगे वो ऐसा सिलेक्ट करेंगे कि ये जो पोर्शन होगा ना, वो आपका इनइक्वालिटी का इन बिटवीन पार्ट हो जाएगा। वी विल सिलेक्ट द फंक्शन इन सच ए वे, दिस विल योर इन बिटवीन पार्ट एंड दिस इज इक्वल टू एफ डैश सी, एंड एफ डैश सी के लिए हम क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। अब क्लियर है सबको? यस सर। ओके, Yes, sir. Yes, sir. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन है तो, मैंने भी देखा नहीं है क्या है, मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ आज आपको। ओके, so now the second question। क्वेश्चन आप है ना यहाँ से मत पढ़ो कि ये शो करो, ये बताओ, सॉरी ये फंक्शन गिवन है वहां से मत पढ़ो, क्वेश्चन को आप यहाँ से देखो। यूजिंग LMVT, और कौन सा LMVT का दूसरा फॉर्म हमने पढ़ा था, व्हाट वाज द सेकंड फॉर्म, क्विकली रिकॉल। इफ theta h greater than 0, theta lies between 0 and 1, 1 then the LMVT convert into f of a plus h, f of a upon h equal to f f dash a plus a plus a theta plus h. theta. so now in this question we have to find out estimation of this। जो भी f dash c था वो अब c क्या हो गया आपका, a plus theta h। say yes or no? so first of Yes, all sir. what is your a and b, Sir, और H- यहाँ पे हमने H b क्या ले छोटा लिया, है। हाँ h छोटा है, कहाँ की बात कर रहे हो, ये इक्वेशन सा- में हाँ h ये question तो एज वही मैं समझा रहा हूँ, आप थोड़ा पेशेंस रखो। ओके, सो बेसिकली व्हाट यू आर गेटिंग इन सिंपल फॉर्म, ठीक है, सॉरी बी माइनस ए। यहाँ पे क्या था, आपको दो वैल्यू स्पेसिफिक फाइंड करनी थी, यू हैव टू फाइंड आउट ए एज वेल एज बी, गेटिंग। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन जो है ना थीटा फॉर्म, उस पर सिर्फ आपको ए की ही जरूरत है। इफ यू कैन फाइंड आउट ए then you automatically find out b, b is nothing but a plus h, that's all। यहाँ पे तो और काम थोड़ा रिड्यूस हो गया आपका, गेटिंग। यस सर। yes sir ओके, Yes, sir. मूव टू द क्वेश्चन। तो फिर अगला प्रश्न ये रहा। ओके, 0 इज लेस देन, आपको ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी है,
0 is less than log 1 plus h inverse minus h inverse less than 1. So बेसिकली ये जो क्वेश्चन है उसमें हमको आइडिया कहाँ से आएगा कि कहाँ से इंटरवल लेना है, क्या करना है? आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया आपने? हमको प्रूफ नो करना सर, है। एक मिनट। मैं लिख रहा हूँ, आप यहाँ से लिख सकते हो। ओके सर। log 1 plus h इनवर्स log का माइनस बेस क्या है? नेचुरल लॉगरिदम को हम अज्यूम करेंगे जहाँ पे अगर कोई बेस चेंज कर दे ना फॉर एग्जांपल, तो हम वहाँ पे उसको स्पेसिफाई करेंगे। दिस इज द लॉगरिदम, बेसिक लॉगरिदम व्हाटएवर यू आर यूजिंग टिल नाउ, दैट इज log एट द बेस e। शायद e यूज करते हो ना आप बेसिकली, log e दैट इज 1, या log 10 यूज करते हो आप? सर मैथ में यूज करते हैं और केमिस्ट्री में टू द बेस 10 यूज करते हैं। 10। अच्छा, और हाँ। अभी कौन सा पढ़ रहे अपन? सब्जेक्ट कौन सा है अपना हमारा? मैथ। तो फिर अरे यार सर फिर भी पूछना जरूरी है। ओके चलो, listen everyone, I think after 4 or 5 lecture from right now I will no longer have this pad. Okay, so at that time I will try to explain you by the PDF, और I will अगर ये दिखेगा अगर कैमरे से तो मैं पीछे ब्लैक बोर्ड लगा दूंगा और उसको यूज करूंगा। I will take the lectures from my home, that is work from home. So उस टाइम मेरे पास ये लेजर पैड नहीं होगा, so you should cooperate me at that time. I will try to explain very best, but at that time I will not have this pad. So थोड़ा क्या है, अगर कैमरे से अगर सही से दिखता है then we will use the blackboard, that is not a issue. और अगर ब्लैक बोर्ड पे अगर सही से नहीं दिखता है तो मैं आपको PDF के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। सो एट दैट टाइम यू शुड कोऑपरेट मी। ओके यस सर। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। देखो अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, उसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो। मुझे इन्वर्स में प्रॉब्लम होती है, मुझे डायरेक्ट समझ नहीं आता है इन्वर्स मीन्स क्या, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ सिंपली। अभी भी मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है क्या एफ है और क्या है। मैं एक और स्टेप कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, h log 1 plus h। ओके, से यस और नो, और Yes, sir. h यहाँ चला जाएगा, h Yes, sir. H minus log of H. अब यहाँ से भी कुछ खास आइडिया क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू वन थिंग, मल्टीप्लाई दिस क्रॉस। तो ये तो जीरो रहेगा, h माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस h log 1 प्लस h। अब मुझे अभी भी क्लियर नहीं हो रहा कोई आइडिया। आई एम डूइंग जस्ट कैलकुलेशन। व्हाट यू विल डू, यू विल सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑल द फैक्टर h, से यस और नो। आप h से सो माइनस h दैट इज लेस देन माइनस लॉग 1 प्लस h लेस देन h that is log of 1 plus h minus 1। अभी भी कुछ खास आइडिया क्लियर नहीं है। सो व्हाट विल डू, वी विल मल्टीप्लाई h that is माइनस। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर सर। ओके हाँ बोलो। ये नीचे वाला नहीं दिख रहा है, ऐसा बोल दो ना एक बार आप मेरे को। Yes, sir. ओके चलो, वो तो मैं PDF में से वैसे आपको बताने वाला हूँ, ये तो जस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ क्विकली। नाउ लिसन एवरीवन, अब ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हो ना, किसी का माइक चालू है क्या? सर। ओके, अब ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हो ना, इसमें हमारे पास एक ही कंडीशन अवेलेबल है, h ग्रेटर देन 0, एंड वी डोंट हैव एनी अदर कंडीशन। सो व्हाट यू कैन डू, ये जो एक्सप्रेशन है ना, एवरीवन सी दिस, व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट डाउन दिस एक्सप्रेशन माइनस log 1। तो फर्क पड़ेगा कुछ इस एक्सप्रेशन में? नो सर। ओके नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा और इसको अच्छे से लिखता हूँ। मैं इसको टी ओके टी लिख देता हूँ, इसको भी log t लिख देता हूँ।
आप मत इसको इरेज मत कर दो, एक काम करो log t इन दोनों के करस्पॉन्डिंग ले लो। अब t की रेंज डिफाइन करके दे दो चलो मुझे फटाफट। 1 to 1 plus h. 1 to 1 to 1 plus h. ओके, तो आपको यहाँ से a मिल गया, आपको a मिला यहाँ से। ये जो होता है वो क्या होता है आपका a होता है ना, a इज 1। b थीटा फॉर्म में हमारा b क्या था, a प्लस एच, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एच, और वो हमको ऑटोमेटिकली मिल रहा है। से यस और नो? Yes, sir. So Yes, sir. for the theta form of the LMVT, you somehow you find out the function fx is equals to log of x, and the range is 1 to, clear है अब आपको? Say yes or no? Yes, sir. Clear. Yes. ठीक है, Yes, क्लियर sir. है, क्लियर है। तो फिर अब अपना काम हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा? अप्लाई थीटा फॉर्म ऑफ LMVT। व्हाट विल बी द थीटा फॉर्म ऑफ LMVT? f of a plus h, that is 1 plus h, minus f of a, that is 1 upon 1 plus h minus h, sorry 1, that is h, is equals to f dash a plus थीटा h। और फिर मैं नेक्स्ट लाइन में इसको क्लियर आउट करता हूँ, इसको लिख दूंगा मैं f ऑफ a, क्या था हमारा, क्या था a, 1 1 और One. थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1। अच्छा, आप लोगों का पढ़ने का मूड नहीं है क्या? थोड़ा थोड़ा। ओके, गुड गुड, होता है ऐसा। ओके, स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है। Yes, सो sir. ये यहाँ तक क्लियर है। सो वी आर अराइविंग एट द स्टेज। आप सिंपल फॉर्म को भी साथ में एक बार कंपेयर करते जाओ। वी आर अराइविंग एट द स्टेज दिस। नाउ व्हाट इज आवर बेसिक टास्क? वी विल फाइंड आउट द एस्टिमेशन ऑफ एफ डैश सी यूजिंग दिस। बट यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1. So in this case we have a less than c less than b, and in this case we have a less than theta less than h. So we can do very well. So what is our theta? This. अब देखो हमको क्या चाहिए, तब हमारा f डैश क्या आएगा, देखो log x था फंक्शन, log का डेरिवेटिव 1/x, 1/x. सो करस्पॉन्डिंग 1 प्लस थीटा h हो जाएगा। से यस और नो यहाँ तक? Yes, sir. सो Yes, जैसे आप यहाँ पे एफ डैश सी फाइंड करते थे ना, सी को यूज करके, यहाँ पे थीटा को यूज कर ये वाला एक्सप्रेशन फाइंड करने का ट्राई करो। तो पहले आपको थीटा के साथ एच, सर आपकी आवाज देन यू वांट वन विथ एक्सप्रेशन। सो आपकी आवाज नहीं आ रही थी। व्हाट आपको दिख जरूर रहा होगा, आवाज नहीं आ रही है बट दिख तो रहा होगा ना। Yes, sir. अभी दिख रहा है. सर दिख रहा पॉज हो गया था सर। पोज हो गया, अरे यार पोज हो गया तो फिर नहीं मजा आएगी। ओके नाउ अब आपको दिख रहा है सब? ये यार नेटवर्क का प्रॉब्लम। दिख रहा है. यस सर। हाँ ओके चलो, तो यहाँ तक क्लियर है ये स्टेप। यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट Yes, sir, h with the clear. theta, so you multiply with theta, then you want 1 plus theta h form, so you add 1 in all the inequality, so what you will get 1 less than 1 plus theta h। so आप क्या करो, अब आपको रेसिप्रोकल चाहिए। so रेसिप्रोकल में क्या होगा, 1 upon 1 plus h is less than 1 upon 1 plus theta h theta is less than 1। say yes or no? No, Yes, sir. sir. अच्छा, No, हाँ, sir. सर वो yes, sir, yes, sir. बराबर वो उधर वाला देखा, मेरे को लगा साइन रेसिप्रोकल नहीं कर। नहीं, मुझे क्या लेस देन वाली इनइक्वालिटी अच्छी लगती है दिखने में, मुझे ग्रेटर देन वाला आंखों से एकदम मजा नहीं आती है, मुझे कंफर्टेबल रहता है लेस देन इनइक्वालिटी में। सो मैंने क्या उसको टर्मिनेट करके ही लिखा है पहले से। नाउ you find out the expression for f dash a plus theta h, so replace the value of a plus theta h, 1 upon 1 plus h less than, what is f dash 1 plus theta h, that is log of, यहाँ पे आप f की वैल्यू भी रख रहे हो ना साथ में, कंफ्यूज मत होना, log of 1 plus h minus log of 1 upon 1 plus h minus 1, that is h, which is less than 1। now what you will do, log 1 is 0। देखो ये बोला था ना इनइक्वालिटी का इन बिटवीन पोर्शन होता है वो हमारा एफ बी माइनस एफ ए होता है। so this will
converted into log 1 plus h upon h and this is 0, this is less than 1. Now simply कुछ नहीं करना है, h को मल्टीप्लाई कर दो और 1 प्लस एच को मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस एच. ओके, सो यू कैन डू अनदर वे. यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं? सो यू कैन डू वन थिंग. अब जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ना, उसके हिसाब से हम इसको रेसिप्रोकल, अगर वो इफ क्वेश्चन रिक्वायर्स टू रेसिप्रोकल इट देन वी विल रेसिप्रोकल इट, अदरवाइज यहाँ से हम नेक्स्ट जो कंडीशन है वो डिराइव कर सकते हैं. लेट अस सी क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है. सो बेसिकली फंक्शन कैसे हमने लिया वो क्लियर है सबको? यस सर. डू दिस वर्क एट रफ साइड, सो आपको थोड़ा आइडिया आ जाए कि ये log x अचानक आ कहाँ से गया, बाकी कोई फंक्शन क्यों नहीं आया. सो उस केस में आपको फंक्शन मिल जाएगा. देन रेंज अप्लाई थीटा फॉर्म ऑफ एलएमवीटी, दिस इज ऑलरेडी गिवन. सो that is f dash a plus theta h is nothing but f of a plus a minus f of a upon h. Then you will find out this expression 1 upon theta h is nothing but log 1 plus h upon h. 1 plus theta h is nothing but h. अब देखो यहाँ पे उसने रेसिप्रोकल ले लिया तो वो वहां से भी हम रेसिप्रोकल ले सकते हैं, नॉट एन इशू. इज इक्वल टू दिस. क्या कहा है देखो, ये जो हमने किया वो रॉन्ग नहीं है. वॉट ही डज 0 लेस देन थीटा लेस देन 1, उसको यूज करके उसने ये कंडीशन डिराइव करी है. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिप्रोकेट इट. सो 1 प्लस एच लेस देन एच इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एच इनवर्स ग्रेटर देन 1. और ये एक तो हम कर सकते हैं, या फिर यहाँ से उसने क्या किया, जो थीटा था ना उसको सेपरेटली ले लिया है. थीटा की कंडीशन क्या थी हमारे पास, 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 1. सो वहाँ से क्या होगा, जो भी थीटा का एस्टिमेशन होगा वो डायरेक्टली 0 से 1 में. और एक अनदर लॉजिक हम क्या लगा सकते हैं कि इनइक्वालिटी जो है ना उसमें देखो आपको रेंज कौन सी दे रखी है इसने, 0 एंड 1, और 0 और 1 के बीच में जो लाइज कर रही है वैसे तो हमारे पास एक ही क्वांटिटी है, दैट इज थीटा. सो व्हाट यू कैन डू आफ्टर अप्लाइंग LMVT, यू कैन जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा. थीटा को आप एक साइड रख लो, बाकी सबको एक साइड, तो जो है वो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा. से यस और नो? सर ये जो बीच वाला है वही थीटा हो जाएगा डायरेक्टली? हाँ, वो डायरेक्टली थीटा हो जाएगा उस केस में. अदरवाइज एफ बी माइनस एफ ए से थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, तो वो अभी एग्जैक्टली स्ट्राइक नहीं हो रहा है. सो यू कैन डू बाय दिस मेथड ऑल्सो, ये रॉन्ग नहीं है. यहाँ कौन सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ तो कहीं ना कहीं एक स्टेप में हमें चेंज करना पड़ेगा. लेट अस ट्राई टू गेट फ्रॉम दिस. Okay, quickly. So what you are having basically, तो वहाँ पर h से डिवाइड कर सकते थे. हाँ h से डिवाइड कर सकते हैं और फिर वो h इनवर्स कॉमन निकल जाएगा. अगर h 1 प्लस h को हम अगर थ्रू आउट अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे ना तो वो हो जाएगा. वेट एक मिनट चेक कर लेते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो 0 लेस देन थीटा इज 1. आपका f डैश a प्लस थीटा दैट इज 1 प्लस थीटा h इज नथिंग बट log x, therefore 1 upon 1 plus theta h. Okay, यहाँ तक क्लियर है. So 0 less than theta less than 1, 0 is less than h, theta is less than h, 1 is less than 1 plus theta h, less than 1 plus h, therefore reciprocal will be this. So basically 1 upon 1 plus h is less than 1 upon 1 plus h, theta is nothing but our log of 1 plus h minus log 1, that is 0 upon h divided by 1. Now what we can do, we can directly multiply, or 0 is less than log of 1 plus h by h minus 1 upon 1 plus h is less than 1 minus 1 upon 1 plus h. यहाँ तक क्लियर है सबको? Say yes or no? Yes, sir.
This implies 0 is less than h inverse log of 1 plus h minus this is 1 plus h inverse. This is less than, यहाँ से 1 plus h minus 1, therefore क्या बचेगा? h upon 1 plus h. Okay, so you can do one thing. यहाँ से इसको 1 upon h ही रहने दो, इसको 1 upon h. LCM ले लो, 0 is less than, नीचे LCM आ जाएगा आपका h into h plus 1. So this will be 1 plus h log of 1 plus h minus h. Okay, this is less than h upon 1 plus h. So यहाँ से शायद 1 plus h कैंसिल कर सकते हैं, बट ये अलग फॉर्मेशन में आ रहा है, जो चाहिए वैसा नहीं. यहाँ पे जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, दिस लिमिट विल बी 1 एंड यहाँ पे हमें 0 चाहिए. सो बेसिकली वो अगर आप करते हो ना, थीटा को एक साइड लेके और फिर काम, तो वो थोड़ा सिंपल रहेगा. अगर इसका आपको एक्सप्रेशन अगर आपको चाहिए तो मैं डिराइव करके दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए, एकदम अचानक से स्ट्राइक नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भूल कर रहे हैं इसमें. सर होमवर्क में करके देखेंगे ना एक बार. हाँ, एक बार ट्राई करके देखना आप. सो बेसिकली दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन. और ये जो है ना साइन इनवर्स वाला, आप एक बार एक्सप्रेशन नोट डाउन कर लो, कल हम करेंगे इसको वर्कआउट. आप एक बार ये एक्सप्रेशन नोट डाउन कर लो. एवरीवन प्लीज नोट डाउन दिस एक्सप्रेशन. पाई बाई 6 प्लस रूट 3 बाई 15 लेस देन साइन इनवर्स 0.6 लेस देन पाई बाई 6 प्लस 1 बाई 8. एवरीवन नोट डाउन दिस क्वेश्चन. We will do it in class, but you have to note it down. Sir, 0.6 पर के लिए. Okay, मैं रिपीट करता हूँ एक बार ये क्वेश्चन. पाई बाई 6 प्लस रूट 3 बाई 15 लेस देन साइन इनवर्स 0.6 लेस देन पाई बाई 6 प्लस 1 बाई 8. अच्छे से देखना ये इंटरवल, इसमें फिर से आज जैसे मत करना कि -1 देखा था 1 देखा था उस टाइप से. Okay? Okay, sir. Yes, sir. Okay, wait a minute. Okay, I sir. will download your attendance sheet. So, आज का क्या रहा लेक्चर का, समझ आया सबको? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इजी था? यस सर. Okay. Too easy. Yes, sir. Yes, sir. इजी था या इजी लगा, मतलब Yes, sir. एक्सप्लेनेशन के बाद? अच्छा, आपके direct- समझाने के बाद आप डायरेक्ट अगर Easy डिराइव लगा। करने जाओगे ना एक्सप्रेशन रूट 100 लेस देन रूट 99 वाला, तो इस जन्म में तो डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं होगा कहाँ से ये आ गया. बट LMVT अप्लाई करोगे ना, तो दैट इज क्वाइट इजी फॉर यू टू एस्टिमेट दैट क्वांटिटी. और ये बेनिफिट है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का. सो यू कैन यूज वेयर यू कैन यूज, हर जगह यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट ये जो फंक्शंस हैं उनके लिए LMVT अप्लाई करके और आप एस्टिमेशन फाइंड आउट कर सकते हो. ओके. सो कल जो Okay, संजय sir. सर का लेक्चर है वो भी शायद सैटरडे, हाँ मैं ही लूँगा. एंड फिर जो नेक्स्ट वीक कल थर्सडे को शायद संजय सर ने मेरा लेक्चर लिया था, तो Yes, sir. हाँ, sir. आज उनका लेक्चर मैंने ले लिया. नाउ सैटरडे का लेक्चर कैलकुलस का रहेगा आपका, दैट इज टुमारो. एंड इन द नेक्स्ट वीक one lecture will be taken by Sanjay sir instead of me. Okay, this is for your information. Confused? So कल कैलकुलस का लेक्चर है, अगर कोई मीटिंग शेड्यूल है तो आप उसमें ज्वाइन मत होना, और कैलकुलस का लेक्चर होगा उसमें ज्वाइन करना. ठीक है, बाय बाय. You can leave now the बाय meeting. सर. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye. Thank you, sir. Bye.